السلام علیکم. آل انڈیا ریڈیو اردو سروس کی نشریات پروگرام آپ کا خط ملا. میں آج شمی عثمانی بھائی پروگرام کرنے آئے. آپ پروگرام سنیں اور اس کی تاثرات آپ اپنے ای میل کے تھرو اردو سروس کی ای میل ایڈریس پہ ڈالیں. رقیب بھی اچھے وہ بھی اچھے وہ بھی اچھے وہ بھی اچھے رقیب بھی اچھے وہ بھی اچھے رقیب بھی. آج کا حسن بدل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. مجھے معلوم ہے ہمارے دوست یعنی ہمارے سامعین منتظر ہوں گے اپنے خطوط کے. جی ہاں، پیش خدمت ہے پروگرام آپ کا خط ملا اور لے کر حاضر ہوں میں آپ کا میزبان شمیم عثمانی. آغاز کر رہے ہیں. یہ خط ہے اجسنا تحصیل شہگاؤں ضلع بلڈانا مہاراشٹر سے ابرار خان اور سیدہ خانم کا. لکھ رہے ہیں کہ جب انسان کی آنکھ سے آنسو بہتے تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے. آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہ جائیں تو مطلب آپ کو تو یقیناً اندر کچھ ٹوٹا ہے. آنسو خشک بھی ہو جائیں تو اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں تکیے پر، میز پر، کاندھے پر اور دل پر. اسی طرح سے 14-15 جنوری بعنوان آنکھوں میں تم دل میں تم موضوع پر اسی شخصیت کی جانب یاد دلاتے رہتا ہے جس کی اداکاری نے فلمی نگری کو 4 چاند لگائے اور جو 4 چاند لگانے میں جن کی خدمات جو ہے پیش تھیں وہ تھی مدھوبالا. فیچر کو اپنی تحریر کا حسن جناب تعبیر مرزا نے اپنے قلم کے جلوے سے تحریر کو روانی عطا کی. فیچر کو 2 قسطوں میں ضم کر کے اداکارہ کی نئی زندگی کا ایک لاجواب مجسمہ تیار کر کے قابل تعریف بنا دیا. واہ کیا لفاظی ہے جناب، بہت بہت شکریہ، نوازش. ہر فنکار کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے جو کامیابی کی سیڑھیوں پر جب لے جاتی ہے تو ان کی کامیابی کہہ اٹھتی ہے منزل مقدر اور اچھی رہبری تمہارے لیے ہیں. ایک فنکار کے تحت پنکج اداس کی گائی ہوئی منفرد غزل ایسا ہی پروگرام ہوتا ہے انداز نظر. اس بار میری پسند کی نشریات کے تحت پھلابا کے پسند کے نغمے پسند آئے، یادیں تازہ ہو گئیں. رت آئے رت جائے یہ ڈرامہ بھی دل کو متاثر کر گیا. جس طرح موسم اپنا مزاج بدلتے رہتے ہیں ایسے ہی انسانی زندگی میں دکھ سکھ کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. لاجواب تحریر تھی. اچھے قلمکار ہی اچھے اپنی قلم سے کورے کاغذ پر ایسے نقشے ابھارتے ہیں جو دل میں اتار دیتے ہیں. آپ کا آگے لکھا انہوں نے 20 جنوری کو آپ کا خط ملا پروگرام میں سبیہ باجی کی میزبانی کا ایسا جادو چلا کہ وہی رسیل اور خوشیوں سے پھولے پھالے ہمارے دل کو ایک اور چراغ ملا. اچھا ہمارے دل کو ایک اور چراغ ملا. بس آپ کی عنایتوں کا ہو بھلا. دعا گو ابرار خان اور سیدہ خانم. بہت بہت شکریہ ایک خوبصورت اور بہترین تحریر پیش کرنے کے لیے ابرار خان اور سیدہ خانم صاحبہ. ہم اکثر و بیشتر آپ کی تحریروں کا تذکرہ کرتے ہیں جس محبت اور خلوص کے ساتھ آپ یہ تحریر روانہ کرتے ہیں واقعی بڑا اچھا لگتا ہے. جو باتیں ہیں جیسے آپ نے تحریر کے انداز نظر کے بارے میں نئی نسل اس کے بارے میں مدھوبالا کے فیچر کے بارے میں، اسی طرح دوسرے موضوعات پر کس طرح کے موضوعات پر ہم پروگرام شروع کریں، کس طرح کے موضوعات آپ کو پسند ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک
अपनी बात पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मयार के मुताबिक अपने प्रोग्राम को तरतीब दे सकें। बहरहाल बहुत शुक्रिया, नवाजिश, इनायत, करम आपके ख़त के लिए। और ये अगला ईमेल, ज़रा दिल थाम के बैठिए, मेरी बारी है। जी हाँ, ये अगला ईमेल जो है मेरे पास बड़े ज़माने के बाद आए हैं। जनाब हुजूर कहाँ थे इतने दिनों से? अब्दुल गफूर कैसर भाई हैं, सतलज रेडियो लिसनर क्लब, भावलनगर, पाकिस्तान से। लिख रहे हैं, उर्दू सर्विस का देरीना लिसनर हूँ। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं अब्दुल गफूर कैसर भाई, तमाम सुनने वाले जानते हैं कि आप बहुत पुराने लिसनर हैं। अच्छा, क्या लिखना चाह रहे हैं कि उर्दू सर्विस रेडियो पर चले, नेट पर नहीं। नेट हर आदमी के पास नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी कोशिश यही है। थोड़ा सा कुछ मुश्किलात बीच में आ गई थी, आपको भी पता ही कि हालात क्या हो गए थे। अचानक एक वबा ने पूरे आलम को अपनी लपेट में ले लिया था और जाहिर है कि उसके बाद फिर सब कुछ जो था डिस्टर्ब हो गया था। अब आपकी दुआओं से और हम लोगों की कोशिशों से कुछ गाड़ी जो है पटरी पर आ रही, तो इंशाल्लाह जल्द ही तमाम जो नशरियात हैं वो बहाल होंगी और इसी तरह से आपको फिर लुत्फ आने लगेगा। आगे लिखते हैं कि मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि उर्दू सर्विस के प्रोग्राम नेट के बजाय रेडियो पर हों। इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिए, आप दुआ कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि ये काम जो है जल्द अज जल्द हो जाए ताकि आपको भी और हमें भी सुनने में मजा आए। जिसके लिए सबिया फजल बहन का बेहद शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स, सत श्री अकाल। जब से कोरोना वायरस नाजिल हुआ है, उर्दू सर्विस की नशरियात बहुत पूरे तरीके से मुतासिर हुई है। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के लिसनर्स पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की तरफ फैले हुए हैं। हम उर्दू सर्विस के मैनेजमेंट से पहले भी गुजारिश करते आ रहे हैं और आज भी गुजारिश कर रहे हैं कि उर्दू सर्विस के नशरियात को इंटरनेट, DRM के साथ साथ रेडियो, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर भी बाकायदा तौर पर बहाल किया जाए। उर्दू सर्विस की नशरियात का कोरोना से पहले ही की तरह अपने मुकर्रर वक्त पर बाकायदा तौर पर बहाल किया जाए। प्रोग्राम सूरज के साथ साथ प्रोग्राम आपकी पसंद, शाम सुहानी, लतीफ़ों का प्रोग्राम नगमा और तबस्सुम और दूसरे मकबूल प्रोग्राम्स को फिर से बहाल किया जाए। जो उर्दू सर्विस के लाजवाब अनाउंसर हैं उनको उर्दू सर्विस की टीम में शामिल किया जाए और इस तरह से ऐसा हो कि काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ लुत्फ आएगा। कुछ नाम भी लिखे हैं आपने, जी हाँ, और भी अच्छे अनाउंसर हैं जिनकी मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको भी उर्दू सर्विस में जोड़ा जाए ताकि दूसरे अनाउंसर के साथ साथ उनकी मखमली आवाज़ सुनकर उर्दू सर्विस के लिसनर की तादाद बढ़ सके और दोस्तों की टेलीफोन पर गुफ्तगू रिकॉर्ड करके फरमाइश में यूज़ की जाए। अच्छा, ये अच्छी बात है आपकी, उर्दू सर्विस में लिसनर दोस्तों की टेलीफोन पर गुफ्तगू रिकॉर्ड करके फरमाइश पूरी की जाए और उर्दू सर्विस के प्रोग्राम में व्हाट्सएप मैसेज को भी शामिल रखा जाए। उम्मीद करते हैं कि उर्दू सर्विस की मैनेजमेंट कमेटी लिखी हुई बातों पर अमल करेगी। प्रोग्राम में हमारी ईमेल शामिल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। हमारे रमेश कुमार खत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक तफसीली ईमेल डाला। जहाँ तक ये सब बातें हैं, देखिए कोरोना किस तरह से फैला था ये आप भी जानते हैं, बल्कि अभी भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका हिस्सा बाकी है। अभी हम कहना चाहिए एकदम बिल्कुल फ्री नहीं हुए। कोशिश यही है कि हम जल्द से जल्द फ्री हो जाएं, हमारी नशरियात उसी तरह से बहाल हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं। इस दौरान भी उर्दू सर्विस ने मुस्तकिल तौर पर अपने सामीन को जोड़े रखा, हर मुमकिन मदद की हमने लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी लाने के लिए, लोगों की सोच को तब्दील करने के लिए, ताकि वो लोग मुस्बत सोचें। जब तमाम तरफ से नशरियात बंद हो चुकी थी तब उर्दू सर्विस ने आगाज़ किया था और उसमें हमें बहुत सपोर्ट मिला था आप लोगों का। अब आपने जिन प्रोग्राम्स के हवाले से लिखा है, जल्दी धीरे धीरे वो प्रोग्राम भी दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम इसी तरह सुनते रहिए और अपने तासुरात से हमें नवाजते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चंद्रशेखर गोट, हमसे हमारे रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, अरशद हुसैन भाई और मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, बल्दिया टाउन वाले, आप तमाम सामीन का। अगले मेल की तरफ बढ़ते हैं जनाब, ये हैं आराइन वली कैफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्सर मेरे दोस्त मुझे कहा करते हैं कि कैफी तुम भाल की खाल उतारते हो। अच्छा, माशाल्लाह, बड़े बारीक काम करते हैं आप तो भाई। और ज़राफ़त से काम लेते हुए जवाबन मैंने उन्हें ये बात लौटा देता हूँ कि मैं क्यों, क्या मैंने नाई की दुकान खोल रखी है या फिर बालों की पेवंदकारी सीख कर गंजों के सर पर बाल उगाना शुरू कर दिया। अच्छा है कैफी साहब, अच्छा है, बहुत खूब। आपका जवाब भी अच्छा और आपके दोस्तों का सवाल भी अच्छा है। चले, हमारी ज़िंदगी
तुम्हारे नशे कम से कम गंजों के तो काम आई। अच्छा, ये बात तो हमने हंसने जमालियत से दोस्तों को हंसने हंसाने के लिए कह दिए। बहुत अच्छा किया आपने, दरअसल हल्का फुल्का हो जाता है आदमी हंसकर। मुझे भी अच्छा लगा, आपने ये बात शुरू में लिख दी, मुझे भी थोड़ा सा हंसने का मौका मिल गया। मगर क्या इसी बाल की खाल उतारने की कहूँ, अच्छा, मगर क्या इस बाल की खाल उतारने की कहूँ या फिर कोई फिजिकल तश्कील का अमल, बायोलॉजिकल इस्तिलाह। उन्होंने दोस्तों से पूछता हूँ कि मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, क्या तजर्बात की रोशनी में बाल की खाल उतारने वाले हजरात उलूम मुहक्किकीन ने इस नुक्ते को, मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, नुक्ते को मुस्बत नतीजे से नहीं नवाजा है, बिल्कुल नवाजा है। उन्हीं के बाल से खाल उतारने की इसी नापसंदीदा आदत ने हमारी जिंदगी को सहल बनाया। बिल्कुल सही कहा आपने। कल हमारे एक रफीक खास ने हमारे व्हाट्सएप पर लतीफ अंदाज में एक पोस्ट रवाना की, लिखा था सोच समझ कर जवाब दें। पहले हमने सोचा, बेहद समझा, बाद समझा कि पोस्ट में जो अल्फाज दर्ज हैं, बताइए उनमें से कौन सा दुरुस्त है। और वो अल्फाज ये थे, गलत। बस इमला में फर्क था, बोलने में तो दोनों अल्फाज ही गलत थे। हमने जब सोचा और समझा तो बस इतना कि ये बोलने में तो गलत हो सकते हैं, मगर लिखने में और इस्तेमाल में गलत होने की बावजूद दुरुस्त है। पहला गलत तो आप अपने रोजमर्रा के कामों में दुरुस्त के मुतज़ाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और लिहाजा वजाहत की जरूरत नहीं है। लिहाजा दूसरा जो गलत है उसके बाल की खाल जरूर उतारनी पड़ेगी। हमारे जैसे एक दोस्त ने सही जवाब दिया कि लोग ये दोनों ही दुरुस्त हैं, लगता है उन्हें हमारी तरह बाल की खाल उतारने की बीमारी लायक है। इतनी तवील तमीद के बाद अब असल मौजू की तरफ आता हूँ। तो जवाब है रेडियो। अब वो रेडियो ख्वाह किसी भी मुल्क का रहा हो, मीडियम वेव और हो कि शॉर्ट वेव हो या फिर FM, मगर आपके सामीन को तो मीडियम वेव पर या शॉर्ट वेव पर ही मतलूब हैं आपके प्रोग्राम। बकौल सबिया फजल के, अल्लाह झूठ न बुलवाए, बाल की खाल उतारने के आर्ज़ा तो आपके रेडियो की इंतजामिया को भी लायक है। इंटरनेट पर मौजूदा शक्ल नीज वर्ल्ड नेबरहुड सर्विस 1 और नेबरहुड सर्विस 2 वगैरह इसी बीमारी या आर्जे का बयान सबूत ही तो है। इस सबूत का सबब है कि हमारा काम आसान तो हुआ, मगर जहां हमारे अखराजात में इजाफा हुआ वहीं आंखों की रोशनी को मांद कर दिया आपने। आगे लिखते हैं कि तो जनाब, इतने लंबे मुबाहिसे के बाद यानी तजवीज़ करूंगा कि मज़कूरा बाला मौजूदा सहूलतों के साथ साथ मीडियम और शॉर्ट वेव की नशरियात के लिए पुराने ज़राए इब्लाग को भी रूबे अमल लाकर ऐसे सामीन को और अपने सामीन बैठने से और खराज फाजलत को बढ़ाने से बचा सकते हैं। जी हाँ, आपकी जानिब से एक ऐसी ही मुस्बत बात होगी जैसे कि आप दीगर बीमारियों, आरज़ों और ज़रूरियात के तसलसल में गाहे बगाहे मुख्तलिफ प्रोग्रामों से न सिर्फ करते रहते हैं और रहा करते हैं, अच्छा आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब आप प्रोग्रामों का जिक्र छिड़ी गया तो आखिर में ये भी बताता चलूँ कि आपने अपने मेहमानों के वास्ते मुख्तलिफ ख्वान का दस्तरखान सजाया हुआ है। अब ये मेहमान गरामी यानी सामीन का इंतखाब इख्तियार है कि वो इन ख्वानीन में से जो ख्वान चाहें पसंद करें। ये नहीं कह सकते कि ये ख़राब है या वो अच्छा है, सभी ख्वान यानी प्रोग्राम अच्छे हैं। अलबत्ता मेज़बान ने तमाम सामीन मेहमानों की पसंद और ज़रूरत को मलूज़ रखते हुए ये खूबसूरत ख्वान तरतीब दिया है। इसी दस्तरखान पे से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और वो इनसे है मुझे मुख्तलिफ अक़साम की एनर्जी मौसूल हुआ करती। वो हैं प्रोग्राम सूरज के साथ साथ शाम सुहानी और मेरी पसंद जैसे प्रोग्राम, जो हम सामीन को बड़े ही महदूद वक्त में तफरीह के साथ साथ तालीमी और मालूमाती ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं। महदूद वक्त इस बिना पर कहा कि आज सबसे ज़्यादा होते हुए भी वक्त ही का किल्लत का शिकार है। मज़ीद तजवीज़ दूंगा कि
प्रोग्राम के आखिर में अगर ये भी बताया करें कि आज का सबसे बेहतरीन ख़त किस सामी का रहा, तो आपके इस अमल से सामीन और सामयात में लिखने, लिखाने और तफक्कुर और तदब्बुर की आदत को बढ़ावा देने में आनत मिलेगी। आराइन वली मोहम्मद कैफी, जैकब लाइन, कराची, पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया आराइन वली कैफी साहब, आपने जिस तरह से ख़त का यानी ईमेल का स्टार्ट किया बहुत अच्छा लगा। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह से आपने लिखा है ना, हमें बहुत पसंद आता है कि हमारे सामीन इतनी मोहब्बत और खुलूस से हमें अपना बना लेते हैं कि हम इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकते। हमारी मजबूरी है कि हम उनके साथ इस तरह से ज़हनी तौर पर जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि हम और वो एक ही फैमिली के मेंबर भी हैं। और रेडियो का मकसद भी ये है कि लोगों को नज़दीक लाया जाए, उनकी सोच को बदला जाए, जो हक़ाइक़ हैं उन्हें सामने लाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतों से, आपके ताउन से हम इस मैदान में, इस शोबे में कामयाब हैं, जो आपके खतूत और आपके ईमेल हमें बताते हैं। आपने जो तजावीज़ दी हैं आराइन वली मोहम्मद कैफी साहब, इंशाअल्लाह इन पर ज़रूर गौर होगा और यकीन कीजिए कि कुछ ना कुछ मुस्बत हल ज़रूर निकलेगा। बहरहाल एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मेल है ये कहाँ से जनाब? खैरपुर, मीरत, सिंध, पाकिस्तान से। और ये हैं शाहनवाज जिस्कानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम, हम खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए भी यही हमारे जज्बात हैं। रेडियो की दुनिया में ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस को पूरी दुनिया में सुना जाता है। अब अफसोस ये है कि नशरियात रेडियो पर नहीं है, सबके पास नेट की सहूलत नहीं है। हमारे ये मैसेज ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के आला हुक्काम को पहुँचा दें। प्लीज़ 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 रेडियो पर नशरियात पहले जैसे बहाल की जाएँ। शाहनवाज जिस्कानी साहब, एक मतलब फिर मैं जवाब देता हूँ इसी बात का कि हमारी कोशिश है जो हालात रहे उस दौरान भी हम लोग आपकी खिदमत में ज़रूर आते रहे, वो चाहे नेट के ज़रिए हो या अपने हमारे यूट्यूब के ज़रिए हो। आप तक हम अपनी बात पहुँचाते रहे हैं, आपको इंटरटेन करते रहे हैं। आपकी ये जो तजवीज़ है, ये जो आपका मेल है, ज़रूर आला हुक्काम तक पहुँचेगा। यकीन कीजिए अच्छा लगा आपने हमें लिखा है कि आप रेडियो से इतनी मोहब्बत करते हैं। ये बात भी सही कि बहुत से लोगों पर नेट नहीं होता, लेकिन बहरहाल कोशिशें जारी हैं। इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, जल्दी आपको एक मुस्बत जवाब मिलेगा। अच्छा जनाब, अगला भी ये कहाँ से है? अच्छा, ये भी हमारे मुस्तकिल सामे हैं और मीरपुर खास डिंगान मोरगढ़ी के हमारे दूदूमल जी, माओ जी मल जी, खुश आमदीद, सदा सलामत रहो। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दूदूमल जी, क्या हाल है आपके? बहुत दिन बाद ज़ियारत हो रही है आपकी तहरीर की। आगे दुआएं लिख रहे हैं कि हमेशा खुश रहें, शाद रहें। एक तमन्ना है कि ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस रेडियो पे सुनने को मिले। अगर प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, मगर रेडियो तो रेडियो है। मीरपुर खास डिंगान बोरगढ़ी से दूदूमल और माओजीमल का ईमेल है, मुख्तसर मेल है, लेकिन बहरहाल जो आपने बात लिखी है उस बात को हम अपने आला हुक्काम तक पहुँचाएंगे। यकीनन कोई बेहतर सूरत सामने आएगी। हम ये चाहते थे, दूदूमल जी आप तो पुराने लिसनर हैं, कुछ प्रोग्रामों के हवाले से लिखते हैं, किस तरह के प्रोग्राम आप पसंद करते हैं, किस तरह के प्रोग्रामों को आप सुनना चाहते हैं, किन प्रोग्रामों के ज़रिए हम अपनी बात और आप तक पहुंचा सकते हैं। और जनाब ये अगला मेल एक तफसीली मेल है जुड्डो सिंध पाकिस्तान से रुखसाना जरवार, शबाना जरवार और समरीना जरवार का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूछती कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, और यही जज्बा हमारे दिल में आपके लिए भी कि खुदा करे आप तमाम लोग हमारे बखैराफियत हों, सेहत के साथ हों और हमारे प्रोग्रामों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हों। आगे लिखती हैं 14 फरवरी को मेरी पसंद प्रोग्राम नईम भाई ने पेश किया। तमाम प्रोग्राम, तमाम नगमे अच्छे लगे और उसी दिन फिल्मी नगमों का प्रोग्राम भी, सभी नगमे खूबसूरत थे। 17 फरवरी को ड्रामा सुना, रुत आए रुत जाए, बेहतरीन ड्रामा था। उसी दिन प्रोग्राम मिले सुर मिला तुम्हारा सबिया जी का पेश किया हुआ अच्छा लगा। 18 फरवरी को अक़वाल ज़री पर मबनी प्रोग्राम शम्मे फ़रोज़ा फरमा बरदारी के मौजू पर सुना, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था। 19 फरवरी को आप बच्चों प्रोग्राम नईम भाई ने पेश किया, अच्छा लगा, लाजवाब प्रोग्राम था। 19 फरवरी को मेरी पसंद प्रोग्राम में शमीम भाई ने बहुत खूबसूरत नगमे पेश किए और उसी दिन फिल्मी नगमे भी शमीम भाई ने पेश किए, अच्छे लगे। मेरी पसंद प्रोग्राम में हमें भी बहुत ही पसंद है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हर अनाउंसर की पसंद की
पसंद के नगमे सुनने को मिल जाते हैं। और आपसे हमारी एक गुजारिश है कि प्रोग्राम शाम सुहानी दोबारा से शुरू किया जाए। सूरज के साथ साथ न सही लेकिन कम से कम शाम सुहानी तो ज़रूर दोबारा शुरू कर दिया जाए। रुखसाना जरवार, शबाना जरवार और समरीना जरवार, जुडो सिंध पाकिस्तान, ये हम जानते हैं कि आप हमारे लिसनर हैं और मुस्तकिल जब प्रोग्राम होते थे शाम सुहानी और सूरज के साथ साथ इसमें आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपने ख्यालात के इजहार भी क्या करते थे। जाहिर है कि देखिए, एक ही जवाब अगर मैं बार बार दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, वो बात रिपीट हो जाएगी। मैं जवाब दे चुका हूं कि हालात क्या थे, किसकी बाइस ये नशरियात बंद हुई थी, लेकिन हमने उस दौरान भी अपनी नशरियात जारी रखी, अपने सामीन को जोड़े रखा। उनके अंदर जो हालात थे उस दौरान, उनसे निकालने के लिए, उस मायूसी से निकालने के लिए रेडियो ने अपनी मुतवातिर खिदमात अंजाम दी हैं और आप लोगों ने सराहा भी है। यकीन कीजिए कि रेडियो को बहुत सराहा गया है और तमाम लोगों ने कहा कि रेडियो ने जो खिदमात अंजाम दी हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। जहाँ तक बात की अपने शाम सुहानी की, तो जल्दी ही कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम दोबारा से शुरू किया जाए। और आपको कौन कौन से प्रोग्राम पसंद आते हैं, इन प्रोग्रामों के अलावा किस तरह के प्रोग्राम आप सुनना चाहते हैं, किन टॉपिक्स या किन मौदूआत पर प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, आप वो भी लिखते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। बहरहाल आपने मेल भेजा और तफसीली मेल भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुखसाना जरवार, शबाना जरवार और समरीना जरवार, जुडो सिंध पाकिस्तान से। चलिए साहब, अब अगले मेल की जानिब चलते हैं। आज तो मेल का सिलसिला माशाल्लाह भरा हुआ है। ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब शमीम सानी साहब, चचा कौन है ये? अच्छा, सिराज सन एवेन्यू भुवनेश्वर से सिराज रोमा, हिना बेहान और रोबीना रोमा। गुजारिश ये करना चाहते हैं कि क्लासिकी मौसीकी का दिन भर में 3 डोज कुछ ज्यादा लगती हैं। अच्छा, आखिर इसे प्रोग्राम फिर से लौटाया जाए जिसे हम मुनासिब समझते हैं। मुझे यकीनन मालूम है कि मेरे वालिद मोहतरम नूर मोहम्मद लखानी साहब भी किसी भी मौसीकार या गुलकार की आवाज़ में कोई भी नगमे की फरमाइश करते हैं तो तामील होती है। वो नगमे पर इरशाद फरमाइश आपका पूरी कर दिया करते हैं। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आपने जो लिखा, अगर मैं पूरी तरह यही पढ़वाया हूँ तो कहीं मुझे लग रहा है इसमें कुछ स्पेस का या स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, लेकिन बहरहाल आपका कहने का मतलब है कि आखिर शब प्रोग्राम दोबारा से शुरू किया जाए। तो देखिए, कोशिशें जारी हैं, इंशाल्लाह जल्द ही आपको आखिर शब प्रोग्राम सुनने को मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ और प्रोग्रामों के हवाले से लिखते, किस वक्त के नशरियात आप ज़्यादा सुनते हैं, सुबह में सुनते हैं, दोपहर में सुनते हैं, शाम में सुनते हैं, वो भी अगर लिखते तो अच्छा लगता। सिराज रोमा, हिना बेहान और रूबीना रोमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक ईमेल के लिए। और अब अगला मेल है जनाब वडोदरा गुजरात से जयंती भाई पटेल, भौमिक निकुंज पटेल का। आदाब, सलाम वालेकुम, हेलो डॉक्टर। अच्छा, फिल्मी दुनिया मेरी पसंद और दूसरे प्रोग्राम सुनते हैं। आप लोगों की पसंद के गाने भी अच्छे लगते हैं। नईम साहब का पेश का प्रोग्राम 19 फरवरी का काबिल तारीफ रहा। हम इस प्रोग्राम में कुछ नयापन चाहते हैं, जैसे अनोखे बोल वाले गाने या मिजाहिया गाने। आप अच्छे प्रोग्राम में हमें मालूमात पसंद आती है और सपना मेरा टूट गया फरमाइशी प्रोग्राम ना रहा, कुछ ना रहा, क्योंकि पहली दूसरी मजलिस में फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। तामील इरशाद तो रात को होता है, रात को हम सुन नहीं पाते। आपका खत मिला जो ही प्रोग्राम पेश करते हैं, हमें सभी के प्रोग्राम पसंद आते हैं, हमारा खत भी शामिल होता है, हमें खुशी होती है। उर्दू सर्विस अब नेबरहुड 1 या वर्ल्ड सर्विस के नाम से प्रोग्राम पेश करते हैं, मगर रेडियो सेट में नहीं आता है। सब जानते हैं ये वर्ल्ड सर्विस नाम दिया गया है। अच्छा होता तो रेडियो पर आना चाहिए। वर्ल्ड सर्विस अगर आपने इसे बनाया है तो इसे रेडियो पर आना चाहिए। दुनिया की सभी वर्ल्ड सर्विस का नशरियात जो रेडियो पर होती हैं। आपने सही कहा। और ये भी आगे लिखा है कि इन्होंने उर्दू सर्विस के जो नशरियात है वो शॉर्ट वेव या मीडियम वेव पर आना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंती भाई पटेल और अहले खाना, आपने जो लिखा है आपकी तजवीज़ पर गौर किया जाएगा और जल्द ही फिर आपको मीडियम और शॉर्ट वेव पर भी हमारी नशरियात मिल सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। और अब यूनुस खतरी साहब का मेल है। अस्सलाम वालेकुम शमीम भाई और तमाम सुनने वालों को, उर्दू सर्विस की पूरी टीम को। हंसते रहे आप हज़ारों के बीच में, जैसे हंसते रहे फूल बहारों के बीच में, रोशन हो दुनिया में इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। वाह 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 वाह। तामिल इरशाद प्रोग्राम शमीम भाई, नईम भाई का, मोहम्मद इमरान का, कलीम अहमद का और बेटी सबिया फजल का पसंद आया।
तकरीबन सभी नगमे पसंद आए और कव्वालियों में हम हर रोज़ मौज सभा प्रोग्राम में सुनते हैं। मेरी पसंद में नईम भाई, शमीम भाई, सबिया फजल की पसंद बेमिसाल होती है। सुबह 9:30 को हर दिन रेडियो की धुन सुनकर जब हम आगाज़ करते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बज़्म ख़वातीन और हमारी बहुओं को और बेगम को पसंद आया। सबिया बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम आपा को सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फिल्मी दुनिया प्रोग्राम में लिखा है अपने ने, मरियम आपा को सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और उर्दू सर्विस की का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कुछ लिखों के इतने से काम चल जाएगा। मोहम्मद यूनुस खत्री साहब, सादिक खत्री साहब, अयूब खत्री साहब, सईदा बानो, रईसा बानो और साबरा और बहुत सारे नाम हैं छिपा कॉलोनी खंडवा से। यूनुस खत्री साहब, एक बात बताऊं मैं आपको कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हमें लिखने की, बोलने की आज़ादी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा लिखिए कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, ऐसा बोलिए कि किसी का दिल ना टूटे। आप जहाँ तक बोल सकते हैं बोलिए, लोगों को करीब लाइए, नज़दीक ये बांटिए, मोहब्बतें बांटिए ताकि लोग नज़दीक आएँ। अगर आप ये कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा जो ये चाहते हैं कि उनके भी जो हैं कुर्बतें हों। जो लोग दूर हो गए हैं उन्हें करीब करना सबसे अहम काम है। कोशिश कीजिए कि जो लोग दूर चले गए हैं वो नज़दीक आए, और रेडियो इस मकसद में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। हम एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक तमाम सामीन को एक डोर में बांधे हुए हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मेल है ठीकरी मध्य प्रदेश से, और भेजने वाले हैं शबनम अकरम और बेटा तबरेज़ और बेटी फरजाना। उर्दू सर्विस को मैं रात को तमिल इशात प्रोग्राम सुन पाती हूँ, बस वो भी मेरे शौहर के मोबाइल पर। अगर आप उर्दू सर्विस को फिर से शुरू कर दें, यानी मीडियम बैंड पर और शॉर्ट बैंड पर, तो फिर हम जैसे हज़ारों ख्वातीन जो हाउस वाइफ हैं, किचन में बिना पैसे खर्च किए सुन सकते हैं। महंगाई के इस दौर में बजट गड़बड़ा जाता है और जाहिर है कि नेट का रिचार्ज कराना हर एक के बस की बात नहीं होता। इसलिए हमारी कोशिश है कि आप इसे, हमारी गुजारिश है कि आप इसे मीडियम और शॉर्ट वेव पर अपनी नशरियात को दोबारा शुरू कर दें। जी देखिए, वही जवाब अभी मैंने दिया थोड़ी देर पहले। ज़्यादातर आज जो मेल है वो सब इसी हवाले से हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके जो मेल हैं ये ऊपर तक पहुंचाएं। यकीनन कुछ ना कुछ मुस्बत इस पर बात होगी और आपको एक अच्छा रिस्पांस जल्द ही मिलेगा। कुछ प्रोग्रामों में तब्दीली होने वाली भी है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, फिर आप बताइएगा कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं और हमें आप कहाँ सुन पा रहे हैं। अच्छा जनाब, अब ये आपका खत मिला के लिए। हेलो जी, आदाब अर्ज़ नमस्कार। गांव जमथड़ा, जिला भुज कच्छ से हैं। गंगा वणकर, प्रणीति, जूली, गीता रोशनी, विशाल, विजय विराट, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, वो पूरा बहुत समय बाद उर्दू सर्विस पर खूबसूरत आवाज़ की मलिका मरियम काज़मी की आवाज़ सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। 17 तारीख को मेरे प्रोग्राम पसंद सुना जो तूफ़ानी बहन ने पेश किया था, वो भी हमें बहुत पसंद आया। तूफ़ानी बहन ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम पेश किया, गाने भी बहुत अच्छे सुनवाए। एक गाना सुनाए रफ़ी साहब का, वो हमें बहुत अच्छा लगा, ज़रा सुन हसीना ए नाज़नी, दिल खुश हो गया। कल शमीम उस्मानी जी ने मेरी पसंद प्रोग्राम पेश किया, वो भी हमें बहुत पसंद आया। उर्दू सर्विस को आप रेडियो पर भी शुरू कर दें प्लीज़, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी पसंद शाम स्वानी, सूरज के साथ साथ ये प्रोग्राम आप शुरू करें। आखिर में आप सबके लिए लाखों दुआएं, हम सब हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। बहुत शुक्रिया गंगा वणकर जी आपकी दुआओं के लिए, हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जाहिर है कि कोशिशें चल रही हैं, जल्दी ही आपको ये मेल रेडियो पर सुनने को मिलेगा। और जनाब अगला ख़त जो है, ये मेल आज प्रोग्राम पेश करता को प्यार भरा नमस्कार। ये हैं ग्रीन सिटी गांधी ग्राम गुजरात से परवीन सोरी, सवाती ख्याति कलावती सोनी। कहने के आज के प्रोग्राम पेश करने वाले को लिए 2 कप गर्मा गर्म चाय, वाह। 11 फरवरी को नम भाई ने आवच्चो प्रोग्राम में रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। 13 फरवरी को, 16 फरवरी को नहीं भाई, 17 फरवरी को शहीन भाई ने तामिल शाद प्रोग्राम लाजवाब पेश किए। शुक्रिया दोनों का। गुजरात से परवीन सोनी और कलावती सोनी। और एक मेल और शामिल करते हैं जो कि वक्त खत्म हुआ चाह रहा है, और ये मेल हमारे पास है हुकुमचंद कटारिया जी का। कोई फूलों से प्यार करता है, कोई कांटों से प्यार करता है, हम उर्दू सर्विस के सभी प्रोग्रामों से प्यार करते हैं। और लिखते हैं, हम हर रोज़ तामिल इशात प्रोग्राम सुनते हैं, हमारी फरमाइश भी आप शामिल कर रहे हैं। रात को से ये कार्यक्रम बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें गीतों का जो समावेश होता है वो रात्रिकालीन गीतों के आधार पर ही होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमें पूरा 1 घंटा ये प्रोग्राम सुनना पड़ता है और हमने हाल ही में सिने जगत की बप्पी लहरी और संध्या मुखर्जी जैसे कलाकारों को खोया, इसका हमें बहुत दुख है। हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया हैं सनावद मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लिखने के लिए। और आज के प्रोग्राम का आखिरी खत कहाँ से जनाब, ये परवीन सोनी जी का तो खत शामिल हो गया है और अच्छा, और तकरीबन इस तरह से तमाम मेल जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस मोहब्बत और जिस खुलूस से आज अपने ईमेल्स रवाना किए हैं। हमारी कोशिशें और आपकी दुआएं इंशाल्लाह रेडियो को और मज़ीद बेहतर बनाएंगी। इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहिए। और फिलहाल मुझे आपका खत मिला प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि मैं आपकी पसंद के कुछ नगमे भी लिए बैठा हूँ जो मैं अपनी पसंद के तहत आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिज़ा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिज़ा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। प्रोग्राम आपका ख़त मिला में शमीम उस्मानी भाई, हमारी ईमेल शामिल करने का शुक्रिया। हम तमाम लिसनर दोस्त जो आपको इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में और जिस जिस शहर में उर्दू सर्विस सुनी जाती है, ये दोस्त चाह रहे हैं उर्दू सर्विस की नशियात को इंटरनेट के साथ, मोबाइल के साथ, रेडियो पर भी बाकायदा तौर पर चलाया जाए और जो नॉर्मल प्रोग्राम थे, जो रूटीन के प्रोग्राम थे, उसको भी नॉर्मल चलाया जाए।